पाकिस्तान में जो एक कॉन्सेप्ट है पढ़ाई को लेके वो बाहर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल बनाया जाता है एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू गो अब्रॉड एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो कि आपकी मेमोरी को टेस्ट कर रहा होता है। 90% लोगों को तो सिर्फ अभी भी यही पता है कि या तो मैट्रिक एफएससी का रूट है और दूसरी तरफ पे क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। तो पाकिस्तानी बच्चों को अगर आप प्रेशर में डालें, अगर इंजीनियरिंग का बच्चा अगर उसको प्रेशर दें तो वो लॉ का पेपर भी पास करे। जिस जनरेशन ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिला दिया, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन थी। मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन यस दे डू रिस्पेक्ट मी लाइक दैट। और उसकी वजह क्या है कि मैं सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सिद्रा अली नकवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग किस्म के गेस्ट हैं हमारे पहले पॉडकास्ट में। नाम है इनका मिस्टर एहतशाम जावेद और इनका इंट्रोडक्शन बहुत ही अमेजिंग किस्म का है जो कि मैं चाहूँगी कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करके हमें खुद बताएं। First of all, thank you very much for having me over here and for your kind words. I did aerospace engineering from University of Hertfordshire. Then I did masters from Cranfield University in advanced lighted structures. तो वो एक समझे कि एक मिक्सचर सी डिग्री है ऑफ मोटर स्पोर्ट्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस. After that, I started working and I did projects for multiple companies like Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce and Airbus while I was doing my masters. Then eventually I came back to Pakistan, और फिर पाकिस्तान आके I found a job in a school as a teacher. So I started teaching history and geography. लेकिन अल्लाह ताला has been very kind since then. और फिर मुझे promotions मिलती गई and currently I'm working as a program leader for one of the top schools of Pakistan. Wow, so that is like one of the most amazing and interesting introduction जो मैंने आज तक सुना है किसी बंदे के बारे में who has started his career from aeronautics जी. and ended up in the education system. जी. So how was the change? That's a story actually. When I came back to Pakistan, I used to miss my school a lot because I think I owe a lot to my school because I come from a rural family. I was the first child जो English बोल सकता था अपनी फैमिली में, और यही स्कोप था मेरे फादर का कि मेरे बच्चे हैं जो उनसे हैं वो इंग्लिश बोल सकें. तो when I went abroad तो मुझे पता चला कि मेरे स्कूल ने मेरे पे कितनी मेहनत की थी. तो वो चीज़ हमेशा से मेरे जहन में थी कि I have to give back. So eventually when I came back, started looking for a job and I ended up as a teacher. लेकिन once I started teaching, so there were many gaps that needed to be filled in back then. And we started working on it as a team. There's this lady जिनको मैं हमेशा mention करता हूँ. She's my mentor and she's like a mother to me, Madam Ruxana Tariq. She groomed us. और फिर करते then I came into a leadership role. उसके बाद फिर मैनेजमेंट के अंदर and then अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर as a headmaster मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और I've been doing that for the last 4-5 years now. Oh, that's incredible. So, sir, as you just told us कि आप basically foreign graduate हैं और पाकिस्तान के सिस्टम से पढ़ के आप अब्रॉड गए और आपने अपनी सारी जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन वहीं से ली है. तो पाकिस्तान में जो एक कॉन्सेप्ट है पढ़ाई को लेके वो बाहर नहीं है. इट्स वेरी डिफरेंट. हर कंट्री का एक जो सिस्टम है एजुकेशन का वो डिफर करता है. So as a Pakistani student when you went abroad, what were the differences you saw? Alright, तो इसको मैं ना थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि I was very lucky because I was studying in English system. मैं Cambridge International के साथ associated था from the start. I did O-levels and A-levels. लेकिन I had another friend. We were only 2 Pakistanis who were doing aerospace from University of Hertfordshire at that point of time. अब मेरा background O-levels और A-levels का था and his background was metric and FSC. So there was a huge difference in the critical approach, how to grasp the knowledge and how to apply it. मैं अपनी बात करूँ तो relatively it's a very modest answer, but still I would say कि थोड़ा सा difference था. I was more friendly towards the knowledge that was being given to me, और उसकी application की तरफ या समझने के जैसे exams pass करने के लिए I had more knowledge that how to put in that particular knowledge into application. Whereas my friend, on the other hand, he used to struggle a lot. क्योंकि he used to tell us stories कि हमें तो एक information दे दी जाती, हमें exactly वही information paper में लिखनी है. अगर हम उससे थोड़ा सा भी deviate करेंगे तो they would not get the marks that they are looking for.
Whereas जहाँ तक मेरी अप्रोच थी, we were given knowledge, and then the questions were, okay, what do you think that how can we apply this knowledge? You were tested. We were Yeah. both of us were tested, but he was struggling कि मैंने उस चीज़ को application में कैसे लेकर आना, because English education system is all about critical thinking Yeah. and critical approach. तो उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क लगता था कि जो Cambridge International के बच्चे थे या जो somebody like me, they were excelling more than people who had come from a local education background. So यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि बेसिकली एक डिफरेंस आ जाता है कि एक पाकिस्तान में ही एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो कि आपकी मेमोरी को टेस्ट कर रहा होता है, राइट? मतलब 3 आवर्स में 100%. आपका जो है वो आपने कितना याद कर लिया है, कितना रिसेप्टिव आपका माइंड रहा है उस चीज़ को करने। और दूसरी तरफ पे क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। मेमोरी के साथ 2-3 और चीज़ें होती हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जी। इम्पोर्टेंट हैं, उनको टेस्ट किया जा रहा होता है। सो आई एम ग्लैड कि आप जब वहाँ पे गए तो आप अपने आप को फिटिंग महसूस कर रहे थे, And I राइट? owe it to my school because I think that was their input, और वो सारी मेरे टीचर्स की मेहनत थी कि मेरे जैसा बंदा भी वहाँ जाके he was feeling as a part of I was feeling like a global citizen rather than being spaced out. So I owe it to my school, I would say that. माशाल्लाह से they work very hard. So moving forward, जिस तरह आप वापस आए, अब एक एजुकेशन सिस्टम था जो आप छोड़ के गए, जी। जिसमें आप खुद पढ़े, और एक एजुकेशन सिस्टम वो है जिसमें यू आर लीडिंग एज एन एग्जांपल ऑफ हेडमास्टर। Yeah. तो इन दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस था? अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना we are going to discuss it on a broader spectrum. In the last 2 decades, या I would say कि last 15 सालों में there has been a drastic change in our society overall. यानी कि आप लास्ट 15 साल के बच्चों को अगर आप देखें और आज के बच्चों को देखें तो उनमें बहुत सारी चीज़ें जिसमें एजुकेशन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पहले के बच्चों के पास, so for example when I was doing my A levels, we only had choice of about 7 to 8 subjects that were being offered back then. आज के बच्चे के पास किसी एवरेज स्कूल के अंदर 15 से 20 A level subjects की choices हैं। Along that there are so many other models जो international transnational education के basis के ऊपर they have come to Pakistan. Another thing that I would like to mention over here कि when I went to England मैंने देखा कि वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे who never did O levels and A levels. वो दूसरे प्रोग्राम से आए हुए थे। So basically what I realized was कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल बनाया जाता है। Yeah. And on the contrary, if you go abroad, they make it as easier as possible, yeah. so that one can end up in a degree that they are passionate about. And another thing that I would like to mention over here कि I was sitting in that engineering class because I did not want to become a doctor. ये मुझे पहले दिन से पता था कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। I had a phobia कि मैं काटूंगा कैसे, ब्लड है ये वो। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान में था जो थोड़ा सा इज्जत वाला था, that was engineering. So that was the reason I chose engineering. और थोड़ा सा मेरी अम्मी की मोटिवेशन थी, she was very fascinated with the planes and pilots. So I ended up in aerospace engineering. But the person sitting right next to me, he was sitting in that class because he was passionate about planes since a very early age. अब उसका जो नॉलेज था या उसका जो अप्रोच थी, that was totally different in comparison to my approach. मैं वहाँ गया था कि यार मैंने मेहनत करके यहाँ पे भी मार्क्स लेने हैं। So I call this time as a professional exam passer. तो पाकिस्तानी बच्चों को अगर आप प्रेशर में डालें, अगर इंजीनियरिंग का बच्चा अगर उसको प्रेशर दें तो वो लॉ का पेपर भी पास कर ले। Yeah. लेकिन जो गोरा वहाँ बैठा हुआ था या कोई और नेशनलिटी बैठी थी, एंड आई वुड मेंशन इंडिया एज वेल, कि जो वहाँ इंडियन बच्चे भी बैठे हुए थे, they were far more skilled, they were far more उनकी critical thinking that was on another level, and they are so hardworking and so passionate about whatever they're doing. So for example कि अगर एक गोरा नंबर बनना चाहता है तो वो आउट ऑफ चॉइस बनता है, वो मजबूरी में नहीं बनता। अगर वो एरोस्पेस इंजीनियर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है तो वो आउट ऑफ पैशन एंड आउट ऑफ लव फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन वो उस वजह से बन रहा है। Whereas in पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो पेरेंट्स पहले कहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6-7 years I've seen कि जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, they are realizing कि इन 2-3 प्रोफेशंस के मेडिकल, इंजीनियरिंग और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लॉ के अलावा there are other professions that are equally
respected. Yes. For example, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं who are studying English literature, English language, and global perspective. Why? Because they want to become script writers. Very nice. They want to become professional writers. And when I ask them, तो वो यही कहते हैं कि no sir, because we love writing, so that is the reason we have opted for these particular subjects. अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास combinations हैं subjects के, कि they're taking business, they're taking law, and they're taking world history as well. अब वो कहते हैं कि जी कल को हमें जहाँ जोन सी फील्ड बेहतर लगेगी, we are going to go into that particular field. तो ये एक बहुत मेजर चेंज आया और जो कि सबसे खूबसूरत चेंज है कि we are becoming more टॉलरेंस हमारे में आना शुरू हो गई है, एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई है और उसकी वजह से the doors are open for this young generation कि they can choose from so many multiple disciplines कि वो कल को they can become a filmmaker, they can become a script writer, they can become whatever they want to become. And alhamdulillah कि पाकिस्तानी एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर अब ये चेंजेस आए हैं with ट्रांसनेशनल एजुकेशन कि there are many other routes. अभी we are very long way from that कि अभी 90% लोगों को तो सिर्फ अभी भी यही पता है कि या तो मैट्रिक एफएससी का रूट है या ओ लेवल्स या ए लेवल्स का रूट है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन द मार्केट देयर आर अदर रूट्स एज वेल जो आप लेके बड़े आराम से यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा सकते हैं सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ये प्रोफेशनल एग्जाम पासेस वाली जो सी बात है दैट इज़ बिकमिंग मोर एविडेंट बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर है या आई डोंट नो व्हाट इकोनॉमिकल प्रेशर्स हैं लोगों के ऊपर और इन लास्ट फ्यू इयर्स तो ये बहुत ज़्यादा हो गया तो जो बच्चा भी पढ़ रहा होता है दे नॉट स्टडिंग के वो इल्म की चाहत वाला जो था कॉन्सेप्ट था ना इट इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस तो अब सिर्फ ये हो रहा है कि आई वांट टू गेट इनटू अ प्रोफेशन दैट इज वेल पेइंग और दैट इज़ वन थिंग इट हैज़ बिकम मोर कमर्शियल और वो कमर्शियल एस्पेक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं आपको नज़र आएगा वो आपको स्कूल यानी कि जितने एजुकेशनिस्ट्स हैं उनमें भी नज़र आएगा वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टीचर्स हैं schools हैं universities हैं कि it's becoming more of a business and commercial entity rather than कि जो पहले जिस तरह से कोई मदरसा था या कोई एक हब था जहाँ पे लोग जाके पढ़ते थे इल्म सीखते थे एक दूसरे के साथ बातें करते थे उन बातों में से लोग सीखते थे तो that is becoming less and less. इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आजकल rat race your life is turning into a race. पहले कॉन्सेप्ट होता था कि लोग बहुत ही धीमी रफ्तार में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे जो था उसके ऊपर सेटिस्फाइड होते थे कंटेंटेड फील करते थे और उनको और ये चाहनी होती थी दे जस्ट वांटेड कि वो जो एक चीज़ कर रहे हैं वो उसी में एक्सेल करें यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 जनरेशंस बैक जिस जनरेशन ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिला दिया लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन थी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि किस तरीके से जो है वो पूरी एक पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी और जो भी हम सब चीज़ें पढ़ते हैं आप टीच करते रहे हैं आपको याद रहता है तो यू नो मतलब एक वो जनरेशन थी जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था लाइफ को लेकर अब चीज़ें थोड़ी सी इट्स ऑल अबाउट अ ट्रेंड इट्स ऑल अबाउट अ मीम यू नो चीज़ें थोड़ी सी इन डायनामिक की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और उसके अंदर जो हमारी ये डायलेमा है बेसिकली मैं इसको ऐसे ही बोलूँगी कि एक डायलेमा है कि हम लोगों को लगता है कि कुछ प्रोफेशंस हैं कि आप उनमें कमाएंगे तो वो इज्जत की कमाई है जबकि अगर हम बात करें जैसे आपने कहा कि एक कोई प्लम्बर भी बन रहा है तो अपनी चॉइस से बन रहा है पैशनेट है उस चीज़ को लेके सो द थिंग इज कि anybody who is earning halal ways में that should be respectful and that should be accepted by the society as well but वो जो tolerance है वो हम अपनी कंट्री में थोड़ी सी कम देखते हैं since you are in the field जहाँ पे बच्चों को परवान चढ़ाया जा रहा है और उनकी जो एक brought up किया जा रहा है उनका जो एक concept है जो layout है वो बिछाया जा रहा है so how do you work on this? If I talk about myself, I would like to define myself with one word that is considerate. तो जो बंदा considerate नहीं होता वो दूसरों की तरफ they cannot have tolerance towards others और acceptance बहुत कम हो जाता है. So and another thing that it's a trickle down effect. जब आप खुद एक personality के मालिक हैं ना तो आपकी वही चीज़ trickle down करेगी आपके students में भी आपके team में भी. So one thing that I have been preaching since day one was acceptance. Try to listen to others. Try to see what's their point of view. और हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप ही का point of view ठीक हो. तो ये चीज़
I've been working on it over the years. तो उस वजह से I think कि आज का बच्चा जो सा है because they have so much exposure of the international market as well. तो सर आपने इतने अच्छे वे में, इतने एलैबोरेटिव वे में सारी जो एक डायनामिक्स थी उनको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोगों ने उड़ती हुई चिड़िया से एक जो है खबर सुनी है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके दीवाने हैं और जब अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते तो वो आपकी बात मानते हैं। तो ऐसा कौन सा जादू है या ऐसे कौन से तावीज़ गंडे हैं जो कि आपने अपने बच्चों के ऊपर आजमाए हैं और वो आपकी बात को जो है वो एकदम से सुन लेते हैं, फिर आंखों पे रख लेते हैं? Siddra, to be very honest, जब मैं पाकिस्तान से गया था आई यूज्ड टू लाइक चौधरी एहतशाम जावेद, तो मेरा भी वही एक एटीट्यूड था टुवर्ड्स पीपल और मेरी वही सारी जो एक बिकॉज आई हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज वेल, मेरी फैमिली वी आर इनटू पॉलिटिक्स एज वेल, तो उस वजह से वो एक आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चाहते हुए या ना चाहते हुए वो एक चीज़ होती है कि मैं तो चौधरी हूँ, मैं बड़ी बहुत चीज़ हूँ। सो व्हेन आई वेंट अब्रॉड मेरी वो चीज़ खत्म हो गई। सो आफ्टर माई ओ लेवल एंड ए लेवल्स के सर्टिफिकेट्स मेरी डिग्रीज पे भी अब एहतशाम जावेद लिखा। तो सबसे पहली चीज़ जो आई बिकेम मोर डाउन टू अर्थ, more modest. So when I came to Pakistan, I saw that there was the biggest challenge in the school. Students were feeling like that they are not being heard. Yeah. There is nobody in the school that would understand how they are feeling or what their problems are. So I started working on it. और उसके अंदर क्या था कि I started sitting with them. उनके साथ बैठना, लंच उनके साथ करना, खाना उनके साथ खाना, प्लेग्राउंड में जाके उनके साथ खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, and all that. Once they started trusting me कि यार ये बंदा है, ये साथ ही तो होता है, इसको हम बता सकते हैं, he's a teacher but still he's a cool guy. Yeah. तो they started opening up. When they started opening up तो वल्लाही आप यकीन करें कि कोई इतने बड़े मसले नहीं थे बच्चों के कि जो हल नहीं हो सकते, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी कि सर हमें ब्रेक टाइम 5 मिनट आप ज़्यादा करते हैं, या अगर हमारी कोई छुट्टी हो जाती है तो उसको एटलीस्ट उस एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट करें, अगर हमें जल्दी जाना है तो किसी वजह से जाना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. Alhamdulillah, the team in which I was working, they also understood it. कि जब तक तीसरा स्टेक होल्डर, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक पेरेंट है, अगर उनमें से एक ही स्टेक होल्डर कुछ नहीं होगा तो दैट कम्युनिकेशन कुड नॉट वर्क. सो दे स्टार्टेड लिसनिंग टू मी एंड आई स्टार्टेड गिविंग देम एडवाइसेस कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं. सो आई थिंक दैट बिल्ट अ रेपुटेशन अमंग द स्टूडेंट्स कि यार ये बंदा अच्छा बंदा है, ये बात सुन लेता है. एंड सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया इस चीज़ में कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ की मैं अपने आप को दाद देता हूँ कि अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट भी हैं तो मुझे 1000 स्टूडेंट का आई हैव दैट पर्सनल कनेक्शन विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. मुझे उनका पता है कि इस बच्चे ने आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद इसका क्या प्रोग्राम है, विच यूनिवर्सिटी ही वांट्स टू एंड अप, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये किन चीज़ों पे खुश होता है. तो ये एक आप समझ लें कि मेरे पास एक टैलेंट समझ लें कि ये है कि आई कनेक्ट विद ऑल माई स्टूडेंट्स. You are like their godfather. You can say that. मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन yes, they do respect me like that. और उसकी वजह क्या है कि मैं सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. मेरा ऑफिस का काम जो है वो दोपहर 3 बजे के बाद जब बच्चे घर चले जाते हैं मैं तब स्टार्ट करता हूँ. और उससे पहले मेरा 90% of the time is with the students. Either I'm sitting in the cafe with them, either I'm playing football with them, either we're just sitting, we're talking about whatever they're studying, कोई challenges है. एंड एक चीज़ कोशिश करता हूँ कि अगर कोई चीज़ मैं ठीक कर सकूँ तो आई ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. दैट इज़ दी ओनली मंत्रा. और मेरा ख्याल है कि टीचर्स या जितने भी मैनेजमेंट है वो ये चीज़ लैक करते हैं, वो थोड़ा सा अपने उस ऑरा में रहते हैं कि नहीं जी देयर हैज़ टू बी अ गैप, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ सीनियर पोजीशन और वी आर इन अ पोजीशन कि जहाँ ये हमारे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें. आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट. व्हेन आई स्विच्ड माय जॉब, that was the only thing that had that had worked for me कि मेरी reputation already पहले से पता थी उस organization को कि he is very well connected with the students. इसी तरह that project was given to me, we started off और बस फिर जो बच्चा आता गया अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर गया नहीं. And since then we are thriving to be the Pakistan's largest A-level program और इंशाल्लाह we are working for it. कनेक्टिंग टू दैट आई हैव हर्ड कि भाई आपकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट रही है कि जब आपको अपॉइंट किया गया आपके स्कूल में एज अ हेड मास्टर तो आपने 5 महीने के अंदर जो टर्नओवर था एडमिशन्स का वो बिल्कुल चेंज कर दिया. तो मतलब वो क्या स्टोरी थी या वो स्टोरी ऐसी थी कि द प्लेस आई वाज वर्किंग एट वो मेरा अपना स्कूल था बट आई हैड टू स्विच ड्यू टू सर्टेन रीजंस.
when I got the next project, तो वो it was the first year कि वो वहाँ पे अभी हमें उस intake में start करना था. So I would like to mention my boss, Dr. Khadija Mushtaq. She is one of the pioneers of transnational education in Pakistan और बड़ी अजीम औरत है. उनसे जब मेरी मीटिंग हुई तो शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट. उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, तुम बताओ कि हाउ वुड यू लाइक टू डू इट. तो इसलिए आई थिंक कि मैं कामयाब हुआ कि शी गेव मी द फ्रीडम एंड शी हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी. तो हमने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ा अच्छा टर्न ओवर रहा. वो एक क्या चीज़ थी जिसने आपको थ्रू आउट इस प्रोसेस में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल मैनेजरियल रोल के अंदर जो है बहुत हेल्प आउट? Individual attention, because bear in mind that I am in a tertiary industry. Tertiary industry है customer services के ऊपर. If a student is coming to me and they want to talk about certain problem or they are not sure about certain thing, तो मेरा ये काम है कि अगर मैं वो हल नहीं भी कर सकता, I should find the right person to guide them. तो जो बच्चा मेरे पास आता था, I would go above and beyond, और मैं उनका जो भी इशू होता था, I would listen to them and I would tell them that I'm sitting here, I'm going to ensure that I'm going to facilitate you to reach the potential that you have, जिसका शायद उस बच्चे को भी 80% of the times नहीं पता होता. Now I'll give you an example कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं who are studying in Harvard. कुछ बच्चे like they have touched Ivy League universities, some of them are in Russell Group universities. और जब मैंने उनको ग्रेड 6 में पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने उनको पहली दफ़ा बताया कि you could be working in Ferrari in next few years, you could be working for all these big companies, तो वो ऐसे थे कि क्या ये पागल है ये बंदा. Most of them did not even know the name of such companies, लेकिन giving them that attention, giving them that confidence, alhamdulillah वो बच्चे मतलब they are thriving. I'm so glad to hear that because अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, so there was a time when there was a big downfall. मैं 93% से एकदम से 70% पे गिरी, and at that time I really wanted कि मेरे टीचर्स या मेरे पेरेंट्स या मेरे सराउंडिंग कोई एक बंदा जो सुने एरिया जो बता सके, जो मेरे साथ कनेक्ट करके बस मुझसे एक सवाल करे कि क्यों हुआ ये, मतलब क्या रीजन थी. You were a good student, why this fall? लेकिन at that time everybody started shouting at you. ऐसे क्यों, मतलब वो ये नहीं पूछेंगे क्यों हुआ, they will be like कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, you know. So I think बहुत important है कि जो आपने रोल प्ले किए उसको काउंसलर का रोल कहा जाता है, जो कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल यूनिवर्सिटीज़ में और ओ लेवल्स के स्कूल में पूरी पोजीशन है काउंसलर की, राइट. तो आई एम वेरी ग्लैड टू हियर कि आप अपने एक सिस्टम में आपने चेंज लेकर आए और आपके साथ बच्चे इतना कनेक्ट कर सके कि दे ट्रस्टेड यू विद देयर प्रॉब्लम्स. दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि टीनेजर्स दैट्स अ रिबेलियस एज, वी हैव बीन थ्रू दैट, सो वी नो गरम जोश वाला खून होता है एंड दे जस्ट वांट टू टेक द वर्ल्ड. बट अगेन अगर आप उस पॉइंट पे उनको सही अटेंशन ना दें तो वो जो एक नाजुक मिट्टी है वो गलत तरीके से भी मोड़ बिल्कुल ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हमने देखे भी. There was a student who was a high achiever, लेकिन somehow he was manhandled and he did not even end up in the university और उसका मुझे बड़ा दुख है. So सर, आपने जिस तरह भी स्टार्ट में बताया मुझे कि 7 years का एक्सपीरियंस आपका एजुकेशन में हो चुका है अभी तक, तो कोई एक ऐसा हमें वाकया बताइए जो अब तक का सबसे अनफॉरगेटेबल एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया रहा हो. So I'll tell you about this kid. While I was heading a junior school, grade 6 till O level school, तो क्या होता था कि जब junior school से बच्चे हमारे पास आते थे, we used to have a briefing about these particular kids. So I'm not going to get into details, but there was this person who was managing those kids, and we were having this meeting, and she said कि जी ये एक बच्चा है, ये बच्चा he's not fit for a normal school. तो मैंने तो पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस बच्चे को इसी स्कूल में कैरी ऑन करवाना चाह रहे हैं. दे डोंट वांट टू स्विच स्कूल्स. मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मैं कहा इतना मतलब वो स्पेशली एबल बच्चा है तो व्हाई इज ही कंटिन्यूइंग इन अ नॉर्मल स्कूल. तो व्हेन द स्कूल्स ओपन्ड, मेरी एक टीचर ने आगे कंप्लेन की, तो मुझे फ़ौरन क्लिक किया, अच्छा ये वही वाला बच्चा होगा. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू दिस क्लास. ग्रेड 6 का बच्चा, क्या 10-12 साल एज होती है, एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग हिम. दैट पर्टिकुलर किड वाज सो एनर्जेटिक कि उसने एक दफ़ा जब अपना काम ख़त्म कर लिया, उसने बाकी किसी को पढ़ने नहीं दिया.
अब मैं उसका काम देखता था तो वो काम बिल्कुल 100% ठीक होता था. I started talking to this kid. And would you believe at the age of 6, this kid knew about Bitcoin. Wow. उसको एस्ट्रोफिजिक्स का पता था, उसको मतलब you name it, वो आपको ऐसे लगता था कि you're talking to an MPhil student. मतलब he was so mature. And when I asked him कि यार तुम क्लास डिस्टर्ब क्यों करते हो, कहते सर ये मैंने सारा खत्म कर लिया है, मैं मुझे बार बार ये रिपीट कराते हैं तो आई फील एजिटेटेड. मैंने कहा ठीक है. सो आई स्टार्टेड सिटिंग विद दैट चाइल्ड. तो जिस बच्चे को टैग कर दिया गया था कि ही इज अ स्पेशल स्टूडेंट एंड ही इज नॉट फिट फॉर अ नॉर्मल स्कूल, would you believe that when he got the right sort of mentorship, that kid ended up on a TEDx stage within 2 months. Wow. And the topic of that talk was that thinking out of the box. Wow. और उस बच्चे ने फिर वहाँ खड़े होकर सालों को बताया कि this is कि उसका point of view क्या था. So that is one achievement that I believe कि वो उसमें मुझे बहुत खुशी है कि वो बच्चा फिर he became a high achiever as well. अभी वो he's going to appear in his O levels and A levels. So I take a lot of pride in that particular student कि हाँ वो एक अच्छी example थी. Wow, mashallah, I'm out of words right now. अच्छा, I'm not sure कि एक और example भी है, but that is going to be a good example or not. But there was this kid in my class. I was teaching back then, history और geography में पढ़ाता था. वो particular बच्चा he was below average. यानी कि हर टीचर ने उसको उड़ा के रखा हुआ कि ये बच्चा तो क्लास में ना ही हो तो ये ज़्यादा बेहतर है. तो मैंने एक दफ़ा क्या किया कि मैंने एक दफ़ा उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया. तो मैंने ना उसके वो एक खुशी देखी उसके चेहरे पे कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि उसको क्लास में किसी ने इज्जत से थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के उसके बारे में बात की थी. तो व्हाट आई डिड, मैंने कहा यार ये टेस्ट है, कहते हैं सारे प्रिपेयर करेंगे. मैंने उस टेस्ट में उस बच्चे को मार्क्स एक्स्ट्रा दिए, हालांकि आंसर्स गलत थे, मैंने उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए. एंड व्हेन आई वाज हैंडिंग आउट द रिजल्ट तो मैंने उसके लिए क्लैप करवा दी इवन दो आंसर्स गलत थे. उस चीज़ ने उसको इतना मोटिवेट किया कि उसकी फिर O levels के अंदर he got straight A's. At one point he was a failure, यानी he was getting U's in all the subjects. तो एक टेस्ट ने उसके ऊपर वो एक मैजिक किया. He got so motivated and I'm sure कि every human beings like respect. और ये चीज़ मैं सारे बड़ों को भी समझाता हूँ कि जब आप एक छोटे बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो रेजोनेट करती है. Yes. Or I think that particular moment he felt respected, he felt good about it, and वो देखें फिर वो कैसे एक बिल्कुल ही it was a different story after that. Respect के साथ I think appreciation. Yeah. That was another key to his success. Yeah. जो क्योंकि एक चीज़ होती है कि अच्छी चीज़ के ऊपर हम लोग के पेरेंट्स समटाइम्स अप्रिशिएट नहीं करते. You're absolutely right. अगर मैं उसको मार्क्स दे के इसे मोटिवेट करने के लिए दे देता, क्लैप ना करवाता क्लास में तो शायद उसका वो इम्पैक्ट ना होता. You're absolutely right. Because there is this concept कि आपके अच्छे grades आते हैं, your father looks at your report and he's like, you can do better than this. Yeah. I mean, it's 93, it's 94, it's 96%. But they're like, नहीं अभी 4% है और ऊपर जा सकते हैं. तो I think अगर उसी चीज़ को respect थोड़ा सा टोन डाउन करने, हाँ. थोड़ा सा बच्चे को प्यार से अप्रिशिएट करते हैं तो it can do wonders, I'm sure. It can do wonders. तो माशाल्लाह से आपके जो अभी तक बैचेस निकले हैं, now this is the question जो मैं अपने उन पर पूछना चाहती हूँ आपसे. अभी तक उनमें से हाईएस्ट जो क्लास निकली है वो कौन से बैच की निकली है? Like O A levels करके निकले हैं? हाँ जी, I would say the biggest number that we had was in O levels. वो तकरीबन आप समझते हैं कि at that point of time we had about 300 students who graduated at the same time. और that was the biggest number that graduated in my tenure. सर आपके जो स्टूडेंट्स A levels से निकले, जो आपकी जो है कहूँगी मेंटरशिप के अंदर थे, उन्होंने आपसे सीखने को उनको मिला, वो किस तरह एंड अप किए यूनिवर्सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू अ लॉट जो कि आपके अंदर ट्रेन नहीं था वर्सेस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके नीचे ट्रेन थे. If you ask me this question, like I'm not sure कि I cannot do a comparison. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं they have ended up in very good universities or at least in the universities. There's a very minute number जो मैं कहूँगा कि who did not end up in university, but there were other reasons as well. कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि they could not ignore at that point of time, जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, लेकिन उनके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे majority of them have ended up in very good universities. Some of them अभी मेरा एक बच्चा आया था कुछ दिन पहले मेरे से, नहीं स्टडिंग इन वॉर्विक यूनिवर्सिटी.
one of them is studying in Stanford. तो ये तो बिल्कुल recent batches में से कुछ बच्चे हैं और उनसे पहले वाले one of our students have ended up in Disney और एक हमारे 2-3 बच्चे हैं who have gone to New York University Abu Dhabi as well. Wow. And on 120% scholarship, so everything is paid for. तो इस तरह के बच्चे थे हमारे पास. Very nice, sir. रैप अप करते हुए इन चीज़ों को मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को जो कि मोस्टली यंग स्कॉलर्स हैं उनको बताइए हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद स्लेट. I think you guys are going to do wonders in the market. जो एक ह्यूमेन फैक्टर है जो बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल्स में या ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में नहीं है वो स्लेट में है. स्लेट इज़ एन इनिशिएटिव वेयर एक्चुअली आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ स्लेट. So I take a lot of pride in it कि स्लेट के अंदर बेसिकली हम वो चीज़ इंकलकेट कर रहे हैं या वो चीज़ इंड्यूस कर रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है उसको उस चीज़ को यूटिलाइज करे टू 100% एफिशिएंसी. वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि जितना भी हम चीज़ों को समराइज करके टू द पॉइंट करके उन तक लेकर जाएं और अवेलेबिलिटी उसकी इस हद तक हम कर दें कि a student studying in a top-notch school or a student sitting in a normal or a below average school, they could get benefit out of that information. So ये इस scope के साथ हम लेके चल रहे हैं कि it's for the masses, it's not for a particular class in Pakistan. हर एक के लिए knowledge के कहते हैं available होगा और बस यही कोशिश है. और Slate is going to do wonders because जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उन सब के अंदर एक चीज़ common है कि they are human beings and they have that human factor in them and all of them are very accepting, tolerance हैं और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं तो फिर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ resonate करती है. So that is one thing about Slate that I have to say. थैंक यू वेरी मच सर अपना टाइम निकालने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए. आई एम वेरी ग्लैड कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई गॉट टू मीट यू और पर्सनली मुझे इस तरह के लोगों के लिए जो एडमायरेशन है वो मैं वर्ड्स में पुट इन नहीं कर सकती थी जो कि एजुकेशन में थोड़े से ह्यूमन फैक्टर लेकर आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग का लेकर आ जाते हैं और उस चीज़ को इनकैशमेंट से ज़्यादा क्षमा से क्षमा जल्दी रहे, पैशन जो है वो बच्चों के अंदर सीना बसीना ट्रांसफर होता रहे उसके ऊपर काम करते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for having me and I really enjoyed the podcast and I wish you the best of luck as well for future and thank you so much for all the kind words. बहुत शुक्रिया. Thank you so much.